तो असिम्प्टोमेटिक यानी कि ऐसे मरीज जिसमें कोई लक्षण नज़र नहीं आते लेकिन वो संक्रमित होते हैं, और ऐसे ही मरीजों ने सभी की चिंता को बढ़ाया है क्योंकि ऐसे मरीजों को ट्रेस करना मुश्किल साबित होता है। लेकिन असिम्प्टोमेटिक को लेकर अब WHO ने कुछ ऐसा कह दिया जो अब सबको राहत दे सकता है। असिम्प्टोमेटिक मरीजों को लेकर क्या कुछ कहा है WHO ने अपनी रिपोर्ट में, देखिए इस खबर। अपनी चपेट में ले लिया है। शायद ही ऐसा कोई देश बचा होगा जहां इसने अपने पांव को ना पसारा हो। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अलग अलग देशों में इसके अलग अलग रूप देखे जा रहे हैं। कहीं इसने ज्यादा परेशान किया है तो कहीं इसने अपना अलग ही रूप दिखाया है। भारत में सबसे ज्यादा उन मरीजों की तादाद है जिनमें किसी भी तरह के कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। ऐसे ही मरीज सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। लेकिन अब ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को लेकर WHO ने कुछ ऐसा कहा है जो कि सभी को बहुत सुकून दे सकता है। कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। WHO की एक ऑफिसर मारिया वेन कारखोफ ने जेनेवा में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि इस महामारी में लक्षण ना दिखना ही हेल्थ एक्सपर्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या है। WHO की ऑफिसर मारिया वेन ने कुछ ऐसा कहा जो सभी को राहत दे सकता है। उन्होंने बताया कि वास्तव में एसिम्प्टोमेटिक रोगियों में किसी अन्य व्यक्ति के संक्रमित होने का खतरा काफी कम होता है। हमारे पास इस बारे में कई देशों से रिपोर्ट आई है जिन्होंने इस बात की जांच की है। They're not quote-unquote COVID symptoms, meaning they may not have developed fever yet, they may not have had a significant cough, or they may not have shortness of breath, but some may have mild disease. Having said that, we do know that there can be people that are truly asymptomatic and PCR positive. The second part of your question is what proportion of asymptomatic individuals actually transmit? So the way that we look at that is we look at these individuals need to be followed carefully over the course of when they're detected and looking at secondary transmission. We have a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare. And much of that is not published in the literature. From the papers that are published, there's one that came out from Singapore, looking at a long-term care facility. There are some household transmission studies where you follow individuals over time and you look at the proportion of those that transmit onwards. We are constantly looking at this data and we're trying to get more information from countries to truly answer this question. It still appears to be rare that an asymptomatic individual actually transmits onward. कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो खांसने और छींकने से फैलती है। यानी किसी व्यक्ति को अगर कोरोना है और उसे खांसी या छींक आ रही है और उस दौरान उसने अपना मुंह को कवर नहीं किया है तो वो ड्रॉपलेट्स किसी और तक पहुंच सकते हैं जो किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन अगर जल्द ही उन संक्रमित लोगों को ट्रेस कर आइसोलेट कर दिया जाता है तो संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ ही उस व्यक्ति के साथ संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस कर आइसोलेट कर दिया जाता है तो संक्रमण को बहुत हद तक काबू किया जा सकता है। इस बात की जानकारी खुद WHO ने भी दी है। What we really want to be focused on is following the symptomatic cases. If we followed all of the symptomatic cases, because we know that this is a respiratory pathogen, it passes from an individual through infectious droplets. If we actually followed all of the symptomatic cases, isolated those cases, followed the contacts and quarantined those contacts, we would drastically reduce. I would love to be able to give a proportion of how much transmission we would actually stop, but it would be a drastic reduction in transmission. If we could focus on that, I think we would do very, very well in terms of suppressing transmission. But from the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. कोरोना अब दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले चुका है, लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इस वायरस से जान का खतरा तब होता है जब संक्रमित व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई अन्य बीमारी। ऐसे में कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीज को जान का खतरा कम होता है, यानी कि उनमें कोविड-19 के विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तेज बुखार,
सूखी खांसी, सांस में तकलीफ जैसी बड़ी समस्या उनमें कम देखने को मिलती है। उनमें थोड़ी बहुत समस्या देखने को ही मिलती है। भले ही एसिम्प्टोमेटिक मरीज दूसरों को संक्रमण तेजी से ना फैलाते हों, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर वो एक बार छींक भी देते हैं और उस दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहना तो ये वायरस बहुत ही आराम से अपनी चेन को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ये जानने के बाद आप सावधानी बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि एक बात तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि जब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तो तब तक सिर्फ और सिर्फ आपकी सावधानी ही इस बीमारी से आपको बचा सकती है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।